Hello everyone. Welcome to the virtual classes of Oscar Public School. How are you all students? I hope you all are fit and fine at your home, and I also hope that you are just studying at your home. So students, we are just continue our last chapter, the United Nations. We have already read about the formation of United Nations, objective of United Nations, organ of United Nations, important agencies of United Nations. So in today's class, we are just continue the agencies of United Nations and achievement of United Nations, India's contribution to the United Nations. Students, before I'm going to start this chapter, I just want to say this, but it is very important to understand this chapter. You have to watch full video at least thrice. आपको चैप्टर को समझने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये वीडियो एटलीस्ट 3 टाइम्स ज़रूर देखें एंड फुल वीडियो. एंड वेन एवर यू आर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट टेक योर टेक्स्ट बुक एंड पेंसिल विथ यू. साथ में पेंसिल साथ लेके बैठेंगे आप, एंड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है यू कैन अंडरलाइन दैट वर्ड एंड ask from teacher or ask from the dictionary also. And if you don't have dictionary, so you can check from the Google as well. Got it? So let's take a quick recap of previous classes. Beta, you have already read about the organs of UN. And how many organs of UN? That is 6 organs of UN. I think you have already made this in the last class. The first one, this is the General Assembly. Let's take a quick recap and quick explanation also. A General Assembly, this is a General Assembly is the main organ of the United Nations. Got it? It's like a parliament which comprises all the members of United Nations. Every nation has a every member nation has a last one representative in it. Basically beta, in the General Assembly meet at least once in a year, and every member nation has a right to one vote in the General Assembly. All the decisions are taken by the majority vote. The next one is Security Council. The main function of Majority Council is to maintain peace and security. Got it, bache? It has Security Council consists of 15 members. 5 are permanent and 10 are non-permanent. And how many countries as the permanent member? The first one, USA, UK, Canada, or UK, China, France, Russia. Repeat after me. USA means United States of America. UK means United Kingdom. China, France, and Russia. The third one in Secretariat. Basically the day-to-day working of the United Nations is carried out by the Secretariat. And who is the Secretariat of UN? Who is the General Secretary of UN? Antonio Guterres. And it is also like a spokesperson of the leader of UN. The fourth one is Economic and Social Council. Basically beta, this is promote the international economic and social development. In this beta, its assembly for a term of 3 years. Its member meets twice a year in April and July and discuss the international social, economic and health issues. The fifth one is International Courts of Justice. This is the only organ of UN that is not situated in the main headquarters in New York. Basically beta, it is the main judicial organ of United Nations. It comprises 15 judges and who elected by the term of 9 years. The last one is the Trusteeship Councils. This Trusteeship Council was formed the help to the slave countries. मैंने बताया था जो countries slaves हैं उनके लिए. And basically after that those countries like Palau become the independent and become the member of UN. So it was dissolved in 1994. यानी कि अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो द ट्रस्टीशिप काउंसिल्स जो है वो अभी डिसॉल्व हो चुका है.
हैव यू गॉट दैट? डिसॉल्व हो चुका है. सो बेटा, नाउ we have already read about this, and this question answers you have already done. So in the today's class we are just talking about the important agencies of UN. बच्चे, for a last few decades of UN has expanded its function. यानी कि जितने हमने ऑर्गन्स पढ़े उसके बाद अभी कुछ हम सालों से हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने अपने फंक्शंस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है. एंड दैट द फील्ड इन हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर. ठीक है, यानी कि और हेल्थ की चीज़ों में, एजुकेशन की चीज़ों में, एग्रीकल्चर में इन्होंने अपने एक्सपेंडेशन एंड फंक्शंस को और ज़्यादा वास्ट कर दिया है. मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन वर्क यूएन इन कैरिड आउट थ्रू द सर्टेन एजेंसीज. Let us learn about the some of them. The first one is UNESCO. What is called UNESCO? And what is that meaning of UNESCO? United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Repeat after me. It's called UNESCO. Or what is the full form of UNESCO? United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Repeat after me. United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Basically बेटा, it promote peace and security थ्रू एजुकेशन. यानी कि ये कहते हैं इन्होंने एक ऐसा एजेंसी बनाई जो कि किसको प्रमोट करेगा? पीस, शांति को, सिक्योरिटी को. ठीक है, बाय थ्रू द एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर. जैसे आप देखते हो टाइम टू टाइम क्या है, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती है जो एजुकेशन से रिलेटेड है. गॉट इट? कि आप जितने लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे उतना वो शांति और सिक्योरिटी बना के रखेंगे, साइंस के थ्रू एंड कल्चर के थ्रू. इट ऑल्सो सिक्योर वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स एंड ह्यूमन राइट्स. बेटा, यूनेस्को आपकी नेशनल हेरिटेज साइट्स को भी देखता है. ठीक है, एंड ह्यूमन राइट्स जो आपके मौलिक अधिकार हैं. एंड हाउ मेनी ह्यूमन राइट्स यू हैव? टेल मी. देर इज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमन राइट्स. आपने फंडामेंटल राइट्स भी पढ़े, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पढ़ी. ठीक है, इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन पेरिस इन फ्रांस. फ्रांस में पेरिस है, यहाँ पर इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर है. सो बेटा, यूनेस्को बेसिकली क्या है करती है? यूनेस्को बेसिकली प्रमोट करती है पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू द एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के थ्रू. बेटा, दिस इज़ द लोगो ऑफ यूनेस्को. यू हैव टू मेड दिस लोगो. आपको आने वाले सभी एजेंसीज के लोगो प्लस उनका नाम, फुल फॉर्म लिखनी है. वेन एवर यू राइट द यूनेस्को, मेक दैट लोगो एंड राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को. गॉट इट बेटा? सो दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो. द सेकेंड वन इज WHO. WHO stands for World Health Organization. This is the logo of this WHO. Repeat after me. World Health Organization is the coordinating authority और international public health. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वर्ल्ड मीन्स पूरे वर्ल्ड की हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें ये लुक आफ्टर करता है. इट इज़ द मेन एम. इनका मेन एम क्या है? टू कंट्रोल, प्रिवेंट एंड ट्रीट आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस. यानी कि बेटा, जितनी भी किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना और उसके बाद उसे ट्रीट करना. ठीक है, ये सारी चीज़ें किसका काम है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो बेटा, इन द यूनाइटेड नेशंस जितनी भी मेंबर कंट्री है वो वर्ल्ड हेल्थ जितनी भी मेंबर कंट्री है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन सभी मेंबर कंट्रीज़ में हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं टू कंट्रोल द डिजीज़ेस, टू प्रिवेंट फ्रॉम द डिजीज़ेस एंड ट्रीट द डिजीज़ेस. सो इट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन्स एंड ड्रग्स. यानी कि इंजेक्शंस और दवाइयाँ भी प्रोवाइड कराता है. इट हेडक्वार्टर्स आर इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड. स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है जेनेवा, वहाँ पर WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का
हेडक्वार्टर है। द थर्ड वन इज यूनिसेफ. What is that? UNICEF. This is the logo of UNICEF. UNICEF stands for United Nations Children's Fund. Repeat after me. United Nations Children's Fund was earlier called United Nations International Children Emergency Fund. बेटा पहले इसका नाम यही रखा गया था, United Nations International Children's Emergency Fund, but in 1953 its name was shortened to United Nations Children's Fund. It conducted programs especially in developing countries to ensure the food, health and education needs to children are met. बेसिकली इसका मेन एम क्या है? बच्चों के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए, उनके फूड के लिए और एजुकेशंस के लिए फंड प्रोवाइड कराता है. फंड मीन्स मनी. गॉट इट? फंड मीन्स मनी. लाइक बेटा आप अभी देख रहे हैं आपके स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में देयर इज़ अ मिड डे मील. मिड डे मील्स मीन्स इन द लंच टाइम स्कूल से ही सभी न्यूट्रिएंट्स वाला खाना बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाएगा फॉर द क्लास टिल 8 तक. ठीक है. सो सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में दिस इज़ अलाउ. ठीक है. और ये जो भी प्लान बना है दिस इज़ मेड बाय द यूनिसेफ कि सभी कंट्रीज़ में कि समटाइम्स पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते स्कूल्स, बिकॉज दे डोंट हैव अ फूड नहीं है, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते. सो वो न्यूट्रिएंट्स, एजुकेशंस मिले, हेल्थ सही रहे, खाना भी मिले और उन्हें एजुकेशन भी मिले. सो ये सारी चीज़ें यूनिसेफ प्रोवाइड करवाता है इन ऑल द मेंबर कंट्री, नॉट फॉर द इंडिया, फॉर ऑल द मेंबर कंट्री हु आर द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस. बच्चों की हेल्थ के लिए, फूड के लिए और एजुकेशंस के लिए सभी नीड्स को पूरा करता है. दिस इज़ द लोगो ऑफ यूनिसेफ. सो यू हैव टू मेड दिस ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. नो वन कैन यूज़ द स्केच कलर्स, ओनली पेंसिल्स यू हैव टू यूज़. अब है FAO. FAO stands for Food and Agriculture Organization. Repeat after me. Food and Agriculture Organization. Beta work on the betterment of life in a rural areas, improvement the agriculture productivity and raise the level of nutrition. इट हेडक्वार्टर्स आर इन रोम इन इटली. बेटा बेसिकली जैसे नाम से ही पता चल रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर. सो दिस एजेंसी प्रमोट द बेटरमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर कि हम अपनी एग्रीकल्चर को कैसे और अच्छे से बढ़ा सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स फार्मर यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जिसके थ्रू फार्मर अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके. ठीक है. न्यूट्रिशंस बढ़ा सके. सो ये सारी चीज़ें जो है वो FAO के थ्रू बनाई गई हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस. एंड इट्स हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इन इटली. द लास्ट वन इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. रिपीट आफ्टर मी. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. एंड हाउ कैन दे डील? It deal with the issue related to labor. Labor means the working class all across the world. यानी कि लेबर के जो वर्किंग है, द वर्किंग पीपल को लेकर जिनको डेली वेजेस मतलब डेली के एक आमदनी, एक पैसा इकट्ठा कर दिया जाता है कि इसका डेली वेजेस, मिनिमम डेली वेजेस इतना होगा. जो वेजेस वाले वर्कर हैं, लेबर क्लास लोग हैं, उनके लिए इन अ वर्ल्ड. सो बेसिकली इट्स हेडक्वार्टर आर इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड. सो अभी हमने पढ़ा कि और किसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है? WHO. Because we have already read that na. WHO headquarter is also in Geneva in Switzerland. And ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. द नेक्स्ट वन इज अचीवमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कि बेटा इन्होंने क्या क्या चीज़ें अचीव करी. द यूनाइटेड नेशंस हैज़ बीन सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग पीस इन अ वर्ल्ड. बेटा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन अभी तक वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ. सो इट मीन्स इट्स सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग पीस इन अ वर्ल्ड एंड हैज़ द प्रिवेंटेड मेजर कन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स. यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद
लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, वो फेल हो गया, तभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। देन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, जिसने अभी तक पीस को कहीं ना कहीं मेंटेन रखा है, और वर्ल्ड में नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। इट हेल्प मैनी कंट्री टू अचीव इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेसी। हमने अभी ये पढ़ा ही था इन आर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो कि यूएन ने क्या करा है, बहुत सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस दिलवाई है और उनमें डेमोक्रेसी भी प्रोवाइड करवाई है। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक मीन्स कि इंडिया में हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज कर सकते हैं, मीन्स राइट ऑफ वोट। यहाँ पर हर पर्सन वोटिंग का अधिकार रखता है, राइट टू वोट, और हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं। ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ हेल्प मैनी कंट्री टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, यानी कि इसने क्या करा है, बहुत सारी कंट्रीज को हेल्प करी है किससे लड़ने में, पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। इलिटरेसी मीन्स अनपढ़ता। एंड डिजीजेस यानी बीमारी। यानी कि किसी भी कंट्री, बेटा कोई भी कंट्री में अगर ये तीन चीज़ें होती हैं तो वो कंट्री आगे डेवलप नहीं हो पाती। इफ़ देयर इज़ अ पॉवर्टी यानी मीन्स गरीबी होगी, अगर वहाँ के लोग अनपढ़ होंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर किसी भी कंट्रीज़ में बहुत सारे डिजीज़ होंगी, उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो वो भी कंट्री आगे डेवलप नहीं हो पाएगी। सो क्या है, यूनाइटेड नेशन ने ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ की हेल्प करी और उनको लड़ाई लड़ने के लिए उनकी हेल्प करी। किससे लड़ाई, किससे, पॉवर्टी से, लिटरेसी से एंड डिजीजेस से। इट हैज़ ऑल्सो प्रमोटेड डिसआर्मेमेंट इन अ वर्ल्ड। व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ डिसआर्मेमेंट? Reduction of military forces and weapons. What is the meaning of disarmament? Reduction of military forces and weapon. यानी कि अभी ज़्यादा वेपन लाइक एटम बम का यूज़ करना इट इज़ नॉट अलाउड। द वॉर इन कोरिया, वियतनाम, पैलेस्टाइन, इराक एंड इराक वर कंटेनिंग बिफोर स्प्रेडिंग द अदर पार्ट ऑफ द ईरान वर कंटेनिंग बिफोर स्प्रेडिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर अभी और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनको जो है लड़ाई से बचाया गया। द नेक्स्ट इज इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूएन। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा? इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन सेम ईयर व्हेन इट वाज फॉर्म्ड इन 1945। अगर हम कहें कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस का मेंबर कब बना, तो स्टार्टिंग से ही, यानी यूनाइटेड नेशंस कब बना था बेटा? टेल मी द डेट। 24 अक्टूबर 1945 को। एंड सेम टाइम से इंडिया वॉज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग अ एक्टिव रोल इन यूनाइटेड नेशंस, यानी कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है यूनाइटेड नेशन के थ्रू, इंडिया उन सभी पॉलिसीज़ को अच्छे से फॉलो करता है। इट ऑल्सो प्लेड अ एक्टिव रोल in General Assembly. Vijay Lakshmi Pandit was elected as the first woman president of United Nations General Assembly in 1953. As you know her name, Vijay Lakshmi Pandit. She is the sister of Pandit Jawaharlal Nehru. Got it? Vijay Lakshmi Pandit was the first woman president of United Nations General Assembly in 1953. ये ऐसी पहली वुमेन थी जो कि एज अ प्रेसिडेंट, यूनाइटेड नेशंस की प्रेसिडेंट बनी इन 1953। इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड यूनाइटेड नेशन टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बेटा व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ कॉलोनिज्म? दैट इज द उपनिवेशवाद, कंट्रोल बाय वन पावर ओवर अ डिपेंडेंट एरिया और पीपल। बेसिकली बेटा कोई कंट्री किसी और कंट्री पर दबाव ना डाले या कोई एक पावर ना बन के रह जाए। सो इसके लिए इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है दूसरी कंट्रीज़ को। जैसे इंडिया हैज़ अ राइट वोट और इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर पूरी कंट्री में रहने वाले सभी लोगों का इक्वल राइट्स हैं। ठीक है। एंड
तो कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि जहाँ पर एक ही रूल चला आता हो, एक ही पावर चली आ रही हो. एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बेटा पक्षपात या भेदभाव. और रेशियल का मतलब व्हेन वी आर जस्ट डिस्क्रिमिनेटिंग अ पर्सन और अ पर्सन बाय थ्रू हिज कलर, रेस, जेंडर. यानी कि जब हम किसी की जाति के अकॉर्डिंग, किसी के कलर स्किन को लेकर, किसी की नस्ल को लेकर उसके साथ भेदभाव करते हैं. India has also played a vital role in maintaining peace. India sends its troops to Korea, Egypt, Congo, Somalia, Angola and Rwanda as a part of peacekeeping force of the UN. बेटा इंडिया ने हमेशा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है टू मेंटेनिंग पीस इन ऑल द वर्ल्ड. और साथ ही साथ हमने अपने ट्रूप्स मीन्स अपने ऐसी सैनिक टुकड़ियां भेजी कोरिया, इजिप्ट, कोंगो में, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे संदेश दिए जो कि यूनाइटेड नेशंस के थ्रू बुलवाए गए शांति प्रदान करने के लिए. सो योर चैप्टर इज फिनिश हेयर. This is the quick recap. The League of Nations was formed after the World War I. The United Nations was formed in 24 October 1945. The organs of United Nations include the General Assembly, Security Council, Secretariat, Economic and Social Council, the International Court of Justice, the Trusteeship Council, विच आर नॉट प्रेजेंट. अभी प्रेजेंटली ट्रस्टीशिप काउंसिल नहीं है. इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन इज यूनेस्को, WHO, यूनिसेफ, FAO, ILO. India became the member of United Nations when it was formed. Vijay Lakshmi Pandit was elected the first woman president of United Nations in General Assembly 1953. बेटा दिस इज द क्विक रिवीजन. यू हैव टू फिल इन योर बुक. आपको ये बुक में भी फिल करना है और अपनी नोटबुक में भी उतारना है. सेम एज दैट एक्सरसाइज, दिस A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट एंड D पार्ट, दिस ऑल हैव टू डू इन योर नोटबुक. एंड बुक में भी फिल करना है, साथ साथ आपको नोटबुक में भी लिखना है. गॉट इट? I hope you understand this video very clearly. Beta, again I'm saying I'm very disappointed sometime. You are not doing work on time. आप अपना काम टाइम पर नहीं कर रहे हो, which is very very bad. So just keep in mind, do your work on a time only. Thank you so much students for watching this video.